अच्छा, दूसरा राजा कितना उसका दूसरा अध्याय, दो का कितना सभी निकाल लो। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और 1 से लेकर 12 पद। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹ ਬਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤਲ ਤੀਕ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੈਤਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਤਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਆਏ। ਤਦ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਯਰੀਹੋ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਦਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਅਰ ਉਹ ਪਾਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਦ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਖੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਨ ਰੱਥ ਤੇ ਅਗਨ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਵਾਹ ਬਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਥੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਥੀ। देखो, परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर आज इस वचन से हम सभी से बातचीत करेंगे। अब एक बार ऐसा हुआ जो हमने वचन पढ़ा वहां पर कि एलिया अभी तक मरे नहीं, परमेश्वर ने उनको जिंदा अपने पास बुला लिया। तो परमेश्वर ने पहले से एलिया को बोलकर रखा था कि एलिया मैं तुझे जिंदा अपने पास ऊपर उठा लूंगा। एलिया ने भी ये बात कई लोगों को बताई थी और कई लोग ये बात जानते थे। जब वो दिन आया तो एलिया को पता था कि आज
मुझे ऊपर जाना है। और भी जो भविष्यवक्ता थे, जो नबी थे, वो उनके बेटे लोग भी ये सारी बातें जानते थे। एलिशा वो भी ये बात जानते थे। अभी एलिया जो थे वो एलिशा के साथ थे। उन्होंने एलिशा को बोला, जब वो गिलगाल में थे, बोले तू यहीं पर ठहर जा और मुझे परमेश्वर ने आगे भेजा है बेतल को, तो मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो यहीं पर ठहर जा। तो एलिशा बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकता। और उन्होंने कसम खाई कि मैं परमेश्वर की कसम खाता हूँ, तेरी भी कसम खाता हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तो चलो वो लोग आगे चले गए, बेतल को चले गए। वहाँ कुछ लोग मिले, उन्होंने एलिशा को बोला, तेरा जो स्वामी है, तेरा जो गुरु है, उसको परमेश्वर ऊपर लेकर जाएंगे, क्या तू जानता है कि नहीं जानता है? बोले मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग चुप रहो। फिर वहाँ एलिया ने एक बार फिर कहा, बोले परमेश्वर ने मुझे आगे और यरीहो को बुलाया है, तो तू यहीं पर ठहर जा। तो एलिशा फिर से मना करता है, बोले नहीं, मैं यहाँ पर नहीं ठहरने वाला, तेरी कसम, परमेश्वर की कसम, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊंगा। तो फिर वो लोग चले गए यरीहो। वहां पर भी कुछ लोग मिले, उन्होंने एलिशा को कहा कि एलिशा, आज तेरे स्वामी को यहाँ से परमेश्वर ऊपर उठाने वाला है, क्या तू जानता है? बोले मैं जानता हूँ, लेकिन तुम लोग चुप रहो। फिर एलिया ने तीसरी बार भी कहा, एलिशा बोले तू यहीं पर रुक जा, परमेश्वर ने मुझे यरदन को बुलाया है। तो बोलता है नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, परमेश्वर की कसम और तेरी कसम। और एलिशा जो है वो उनके साथ साथ, उनके पीछे पीछे वो वहां पर गए। एलिशा जो थे वो अपने जीवन में एक धनवान इंसान के बेटे रह चुके थे। भविष्यवक्ता बनने से पहले वो एक धनवान इंसान के लड़के थे। वो कैसे पता चलता है? तो पहले राजा में लिखा है, पहला राजा और उसका 19वां अध्याय और उसका 19वां पद पढ़ो। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾ ਲੱਭਾ। ਉਹਦੀ 12 ਹਲਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੀ। हाँ, अभी ये खेती कर रहा था, तो वहां पर बैल कितने थे? नहीं, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। हाँ, 12 जोड़ी, मतलब 24 पलक थे। अभी समझो 24 बैल जिसके पास हो और 24 बैल को लेकर जो खेती करता हो, तो उसकी जमीन काफी होगी, तभी तो 24 बैल के साथ वो खेती कर रहा है। वो तो ठीक है, साथ में उसके सर की ताकत भी इतनी होनी चाहिए कि 24 बैल को एक साथ में संभाल रहा हो। तो एलिशा ऐसा इंसान था जो पैसे वाला था, साथ में उसकी शरीर की शक्ति भी कुछ ऐसी थी, मतलब उसकी हाइट बड़ी अच्छी होगी, और 24 बैल के साथ वो वहां पर खेती कर रहा था। तभी वहां पर एलिया आए। तो परमेश्वर ने एलिया को बोला था कि एलिया तू जाना और तेरी जगह पर एलिशा जो है तो उसका तो अपनी जगह पर उसका अभिषेक करना। और पढ़ो उसका 15वां पद पढ़ो तो। इसी का 19 का। ਉਹ 19 का। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਮਤੇ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ और आगे ਅਤੇ ਨਿਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਲੀਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਬੇਲ ਮੋਹਲਾਹਾ ਦਾ ਹੈ ਮਤੇ ਕਰਕੇ वो तेरे थान नबी होवे। हाँ, अभी देखो परमेश्वर ने क्या बोला था कि तेरी जगह पर तो किसका अभिषेक कर दे, किसका मसा कर दे, उन्हें एलिशा का मसा कर दे, और तेरी जगह पर उसको भविष्यवक्ता नबी तो उसको बना दे। उस वक्त एलिया जो थे, एलिया का काम बहुत बढ़िया चल रहा था। एलिया वो थे कि जब परमेश्वर ने उनको भेजा अहाब राजा के पास, तो जाकर एलिया ने ऐसा बोला कि ये अहाब राजा सुन लो, जब तक
मैं ना कहूँ तब तक आसमान से बरसात नहीं आएगी। अभी देखो कोई जाकर ऐसा बोले कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है कि जब तक परमेश्वर नहीं कहेंगे तब तक बरसात नहीं आएगी, ये कुछ बात अलग से। लेकिन एलिया तो क्या बोलते हैं, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आसमान से बरसात नहीं आएगी। अभी समझ लो कि एलिया ने तो बोल दिया कि जब तक मैं नहीं कहूँगा आसमान से बरसात नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को बोला तू जाकर इतना बोल दे। अभी एलिया ने जाकर बोल भी दिया। अभी समझो कि एलिया ने तो बोल दिया, लेकिन अगर कहीं पर बीच में बरसात आ गई तो एलिया को डर लगा रहेगा ना अंदर से कि हो सकता है बरसात आ जाए। कभी बादल भी आ गए तो भी अंदर से डर लगा रहेगा कहीं मैंने जो बोला कहीं गलत ना हो जाए। तो एलिया ने तो जाकर ऐसा बोल दिया। परमेश्वर बोलते ऐसा नहीं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बरसात नहीं आएगी। वो तो बोलकर चले गए। बोलकर चले जाने के बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तू करिन्थ के पास चला जा, वहां पर एक झरना बहता है, वहां पर कौवे आकर तुझे खाना देकर जाएगा, वहां का पानी तू पीना। वो सब हो गया, वहां का पानी सूख गया। तो परमेश्वर ने उसको सारपत को भेज दिया, बोले वहां पर एक विधवा औरत है, वो तुझे खाना खिलाएगी। और एलिया वहां पर चले गए। 3.5 साल तक वहीं पर रुके। 3.5 साल तक कहीं पर बरसात नहीं हुई। उसके बाद परमेश्वर ने एक बार फिर एलिया को बोला कि एलिया तू जा और राजा के पास जा। तो एलिया राजा के पास जाने के लिए पहले किसी भविष्यवक्ता के पास गए। परमेश्वर का एक दास था, उसके पास गए। उसको जाकर ऐसा बोला कि तू जाकर राजा को बता दे, क्योंकि वो राजा के घराने में काम करता था। तो उसको बोला कि तू राजा को जाकर बता दे कि एलिया तुझसे मिलना चाहता है। तो वो क्या बोलता है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बोले क्यों? बोले जब मैं बताऊंगा राजा को कि एलिया मेरे पास आया हुआ है, मेरे घर में ठहरा हो, चल तू उससे मिल ले। तो बोलते हैं जब राजा यहाँ पर आएगा तो बोले पवित्र आत्मा तुझे उठाकर कहीं और लेकर जाएगा, मैं झूठा हो जाऊंगा और राजा मुझे मारेगा। तो ये परमेश्वर का दास ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था पहले कि कई लोगों ने एलिया को देख लिया कहीं पर जाते हुए, तो जाकर राजा को बोलते राजा एलिया यहीं पर है। और जब राजा वहां पर जाता था तो परमेश्वर का आत्मा उसको उठाकर कहीं और लेकर चले जाते थे। तो एलिया किसी के हाथ में नहीं आता था। और राजा ने बोल दिया था कि एलिया जहां पर मिले उसको बोलते मार दो, उसको खत्म कर दो, क्योंकि उसकी वजह से बरसात नहीं हो रही। तो एलिया ऐसा भविष्यवक्ता था, ऐसा वैसा नहीं था। बहुत जोरों से सामर्थ्य से परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अभी क्या हुआ, डायरेक्ट उसी की जगह पर, एलिया की जगह पर डायरेक्ट एलीशा को बोले भविष्यवक्ता बना दे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। अभी समझो कि हमें अगर परमेश्वर किसी और जगह पर बिठा दे जो बहुत ही बड़ा इंसान है, उसकी जगह पर अगर हमें बिठा दे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अब आज तक कुछ काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर डायरेक्ट ऐसी जगह पर हमको बिठा दे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। अभी एलीशा चाहे पैसे वाला है, चाहे उसके पास जमीन जायदाद है, चाहे उसकी शारीरिक शक्ति अच्छी है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट एलिया की जगह पर, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो एलिया जो थे, जब वो राजा से मिले तो उन्होंने राजा को कहा कि राजा कल ऐसा काम कर, तेरे पास जो 850 भविष्यवक्ता है, झूठे भविष्यवक्ता, उन सभी को लेकर बोले तू पहाड़ के ऊपर आ जा। और बोलते मैं भी वहां पर आऊंगा और पूरे इजराइल लोगों को वहां पर इकट्ठा कर। और बोले कि जो बाल के जो भविष्यवक्ता है, नबी लोग हैं, वो लोग एक बलि को रखेंगे और अपने परमेश्वर से दुआ करेंगे और परमेश्वर आग से उनको उत्तर देंगे और उनकी बलि को भस्म करेंगे। और मैं भी अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं उनसे विनती करूंगा और वो भी आग से उत्तर देंगे। और जिसका परमेश्वर आग से उत्तर दे वो परमेश्वर सच्चा है, उसी को सबको मानना है। तो बोले ठीक है। अब ये कितनी बड़ी चैलेंज, अगर हम बाहर जाकर किसी को बोल दे, किसी मुसलमान को बोल दे, किसी हिंदू को बोल दे, चलो तुम्हारा देव देवता को आप बुला लो, मैं मेरे यीशु मसीह को बुलाता हूँ, देखते किसका परमेश्वर आता है, किसकी बलि को भस्म करता है, कहाँ से आग आती है, चलो हम देखते। तो ये कोई ऐसी वैसी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चैलेंज है। और एक और 850 भविष्यवक्ता है, एक और एलिया अकेले, एक और पूरी इजराइल की प्रजा है जो ये सब कुछ देखने वाली है। और अगर ये काम नहीं हुआ तो, लेकिन एलिया का भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के कहने के अनुसार वो काम करते। तो पहले उसने बाल के नबी लोगों को बोला कि चलो आप लोग पहले बलि को रखो। उन लोगों ने लकड़े काटे, बलि रखी और उसके बाद वो अपने
परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि आप आओ और आग भेजो और इस बलि को भस्म करो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोपहर हो गई, लोग चिल्लाने लगे, जोरों जोरों से चिल्लाने लगे, परमेश्वर जल्दी आओ, बाल तो जल्दी आओ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एलिय्याह ने उनके साथ उनका इकट्ठा भी किया। बोले तुम्हारा परमेश्वर लगता है दोपहर में सो गया है, जोरों से चिल्लाओ, उसको उठाओ। फिर भी कुछ नहीं हुआ। बोले कहीं आपका परमेश्वर सफर में तो नहीं निकला, रास्ते में है, उसको आवाज नहीं पहुंच रही, और जोरों से पुकारो। ऐसे करते करते शाम हो गई, लेकिन कहीं से कोई भी उत्तर नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, शाम होने के बाद अब एलिय्याह बोलता है अब मेरी बारी। फिर उसने लोगों को बोला कि पहले तो ये जो वेदी बनाई उस लकड़ी के ऊपर बोले 12 घड़ा पानी डाल दो। पानी डाल दिया। फिर जो वेदी बनाई उसके चारों ओर खड्डा खुदवा कर उसको भी पानी से भर दिया। कहीं कोई कल उठकर ऐसा ना बोलते कि इसने पहले से बीच में से आग छुपा कर रखी होगी और वहीं से आग निकली। तो पानी डालने के बाद उससे परमेश्वर से एक ही बार कहा, परमेश्वर आप आओ। और परमेश्वर की ओर से एक आग आई और बलि को भस्म किया। और एलिय्याह ने फिर अपनी तलवार निकाल दी और जो सामने 850 नबी लोग थे जो झूठे थे, सभी को वहीं पर काट दिया। और राजा को बोला, देख राजा अभी बरसात होने वाली है। और उस वक्त जोरों से बरसात भी होने लगी। तो ऐसा एलिय्याह जो थे ऐसे भविष्यवक्ता थे, जैसे तैसे नहीं थे। अभी डायरेक्ट उनकी जगह पर एलीशा। लेकिन शब्द क्या है जो हमने पढ़ा उसका 16वां पद फिर से पढ़ो तो, पहला राजा 19 का 16। पहला राजा 19 का 16। ਅਤੇ ਨਿਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਬੇਲ ਮਲਹੋ ਦਾ है मसा करके वो तेरे थां नदी होवे। हाँ, तेरी जगह पर वो नदी होए। कौन? एलीशा। एलीशा किसकी जगह पर नदी होए? एलिय्याह की। हाँ, अभी परमेश्वर के एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बाइबल में जो शब्द लिखे गए ना तो वो ज्यादा है ना तो वो कम है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैंने जो लिखा है उसमें ना कुछ बढ़ाओ ना कुछ कम करो। बढ़ाओगे तो बोले कि आपके ऊपर विपत्ति बढ़ जाएगी, और कम करोगे तो आपका नाम जीवन की पोथी से निकाल दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने जितना लिख दिया बस बात खत्म हो गई, वो संपूर्ण है। अभी उसमें कुछ कमी घटी हमें करनी नहीं है। तो परमेश्वर के जितने भी शब्द हैं उसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। सुबह जब हम मलकी जी के घर बैठे तो वहां पर एक पद को लेकर हमने कुछ सीखा कि किस तरह से परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं हम लोग, किस तरह से उसको हम स्टडी कर सकते हैं, वो हमने वहां पर देखा। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर का एक एक शब्द ऐसा है कि उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। एक बार परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया, मूसा लाठी अपने हाथ में ले और चट्टान के पास जा, वहां पर इस्राएल के मंडली को इकट्ठा कर और चट्टान से कहे कि पानी दे, और चट्टान तुझे पानी देगा। और मूसा वहां पर गए भी, लाठी भी हाथ में ली, लोगों को इकट्ठा भी किया। लेकिन उससे पहले भी यही परमेश्वर ने करने को कहा था, लेकिन उस वक्त मांगने को नहीं कहा था, उस वक्त लाठी मारने को कहा था। और मूसा के दिमाग से निकल गया, मुझे लाठी मारने को बोला या मांगने को कहा। या तो परमेश्वर से गलती होगी या मेरे सुनने से गलती हुई। और उसने 2 बार लाठी मार दी। 2 बार लाठी मारी, पानी तो फिर भी निकल गया, चमत्कार तो फिर भी हो गया। लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया कि मूसा तू अब इन लोगों को लेकर तू उस देश में नहीं जा सकता, वचन के देश में तू इनको नहीं पहुंचाएगा, अब यहोशू उनको पहुंचाएगा। परमेश्वर उसको मना कर दी। एक थोड़ी सी गलती सुनने में समझ में, एक ही शब्द की गलती, सब कुछ उसने सही किया, सिर्फ मांगने की जगह पर लाठी मार दी। बस यही एक गलती उससे हो गई जो उसको बहुत भारी पड़ गई। तो परमेश्वर का जो वचन है उसको हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। तो परमेश्वर ने एलीशा को यह बोला कि एलिय्याह की जगह पर अभी तू भविष्यवक्ता, अभी तू नबी ठहरेगा एलिय्याह की जगह। इसका दूसरा मतलब क्या होता है? एलिय्याह की जगह तू मतलब एलिय्याह नहीं है तो तू है भविष्य में। जब तक एलिय्याह है तब तक तो तू उसकी जगह नहीं ले सकता। जब एलिय्याह नहीं है तभी तो उसे उसकी जगह लेनी है। तो जब मूसा इस धरती के ऊपर थे और परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को बोला कि मूसा तू मेरे इस्राएल लोगों को तू छुड़ा ले। तो जब मूसा ये काम कर रहे थे तो
और यहोशू उस वक्त जवान लड़का था, वो मूसा के साथ जुड़ गए। कहीं पर भी मूसा ने यहोशू को नहीं बोला यहोशू तू मेरे पास आ, तू मेरे साथ रहे, ऐसा कभी मूसा ने यहोशू को नहीं बोला। लेकिन यहोशू सामने से गए और मूसा को बोला मूसा मैं तो आपके साथ रहूंगा। मूसा बोलते कोई बात नहीं। किस तरह से वो साथ रहते थे, जब मूसा खाने के लिए बैठते थे तो यहोशू पानी लेकर आता था और पानी लेकर आकर बोलते लो मूसा पहले हाथ धो लो, तौलिया लेकर आता लो पहले हाथ पोंछ लो, खाना खाया एक बार फिर चलो हाथ धो लो, चलो पोंछ लो उसको। मूसा का जो भी काम होता था तो यहोशू वहां पहले से हाजिर और वो मूसा के साथ साथ चिपके ही रहते थे। मूसा को इतना भी काम नहीं करने देते थे। हालांकि मूसा ने कभी यहोशू को ऐसा नहीं कहा तू मेरा काम कर या तू मेरी सेवा कर, लेकिन यहोशू अपने आप ये सेवा जो है वो सेवा करते रहते थे और एक दो दिन नहीं 40-40 साल तक सेवा की। हमारे वहाँ एक लड़का है, तो एक भाई साहब जो थे वो रेलवे में जॉब कर रहे थे, उनकी कार वो ये भाई साहब चला रहे थे। वो अभी सुबह बुलाया तो सुबह हाजिर, शाम को बुलाया शाम को हाजिर, अगर रात को बुलाया तो रात को हाजिर, लेकिन ड्राइवर पूरी ईमानदारी से वो करते थे। अभी ऐसा करते करते ये जो ड्राइवर साहब जो थे वो 40 साल के हो गए। अभी 40 साल की उम्र में कहीं पर जॉब नहीं मिलती, लेकिन उसका जो बॉस था जिसकी गाड़ी चला रहे उन्होंने किसी भी तरह से उसको रेलवे के अंदर जॉब दिला दी। उनको 40 साल की उम्र में किसी भी तरह से उनका नाम अंदर दाखिल करवा दिया। अभी वो रेलवे में अच्छी सी जॉब कर रहे हैं, अभी 1-2 साल में वो रिटायर भी होने वाले हैं। लेकिन किसी की सेवा की तो उसके बाद कहीं पर उनको फल मिला। अभी अच्छी सी जॉब में अच्छा सब तनख्वाह लेते हैं और अच्छे से पैसे लेकर वो वहाँ से रिटायर हो गए। तो हो सकता है उनका घर बार अच्छे से बन जाए या गाड़ी भी मिल जाए कुछ भी, लेकिन 2 पैसे उनके पास देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने मजदूरी की और अपने मालिक के साथ जुड़े रहे। यहाँ पर यहोशू जो है वो अपने मालिक की सेवा कर रहे, मतलब मूसा की सेवा कर रहे। लेकिन कब तक मूसा की सेवा करते रहे? मूसा तो 40 साल तक जिंदा रहे, 80 साल के तो थे और 40 साल, और वो 40 साल तक यहोशू लगातार सेवा करते रहे। अभी समझो कि उस वक्त यहोशू अगर 40 साल के थे तो सेवा करते करते वो तो 80 साल के हो गए समझो। तो यहोशू जो है वो सेवा करते रहे मूसा की। कई बार हम लोग सेवा करते तो हमें ऐसा लगता है कि कब तक इनकी सेवा करें, ये तो मरता भी नहीं, मरेगा तो उसकी जगह हमें मिलेगी, तो कोई मरेगा तभी हमें उसकी जगह मिलेगी। मूसा मरते नहीं है तो यहोशू को उसकी जगह नहीं मिलेगी। हो सकता है यहोशू के मन में अगर ये बात हो भी अगर, तो वो सेवा करेंगे तो सोचेंगे कि कब तक मैं सेवा करूं, इनको तो कुछ होता नहीं है या परमेश्वर को हटाते नहीं, और ये भी मुझे किसी जगह कोई जगह तो मुझे देते नहीं, ये तो जहां पर है वहीं पर, मैं भी जहां पर हूँ वहीं पर हूँ। लेकिन यहोशू के मन में कभी ऐसी चीज जो है वो कभी नहीं आई। बस उनका एक ही काम था कि मूसा की किसी तरह से बस सेवा करता रहो और उनके पीछे चलता रहो। आखिर में क्या हुआ, जब मूसा 120 साल के हो गए तब परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा अब तो ऊपर जो नबो पहाड़ है उसके ऊपर आ जा, अब तो मरने वाला है। बोले परमेश्वर मैं मरूंगा तो आगे जो लोगों को लेकर जाना है तो परमेश्वर उसको पहले से ही मना कर रखा था। तो परमेश्वर ने बोला कि तेरी जगह पर जो यहोशू है ना, यहोशू को तो अपनी जगह दे दे, और अब यहोशू जो है वो इन लोगों को उस वचन के देश में, विश्राम के देश में लेकर जाएंगे। 40 साल सेवा करने के बाद यहोशू को ये मौका मिला कि वो इजराइल लोगों को उस पार लेकर जाए और मूसा की जगह यहोशू को मिली। लेकिन यहोशू ने 40-40 साल तक मूसा की सेवा की, परमेश्वर की तो बाद में, लेकिन मूसा की सेवा 40-40 साल तक वो करते रहे। और फिर यहोशू के पुस्तक में लिखा, यहोशू का पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसका 15 पद पढ़ दो। यहोशू 24 का 15। 24 का 15।
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। देखो यहोशू ने क्या बोला, मैं और मेरा घराना किसकी उपासना करेंगे? यहोवा की ही उपासना करेंगे। अभी देखो आजकल बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, फिर 1 साल 2 साल फिर वो पीछे मुड़ जाता है। यहोशू ने कब बोला है? यहोशू बूढ़ा हो चुका था अभी, उसने 40 साल से ज्यादा परमेश्वर की सेवा कर चुके थे। उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की ही सेवा करेंगे। ज्यादातर मसीह लोगों को देखना, कोई 2 साल में थक जाता है, कोई 4 साल में थक जाता है, कोई 10 साल में थक जाता है, फिर बोलते हैं नहीं हम तो जहाँ पर थे वहीं पर अच्छे, हमें तो बस अभी परमेश्वर से कुछ मिला नहीं, हमारा तो अच्छा हुआ नहीं, अभी हम परमेश्वर को छोड़ रहे हैं और वापस अपने पुराने जीवन में वो लोग चले जाते हैं। और यहोशू जो है उसने 40 साल से ज्यादा परमेश्वर की सेवा की, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे कि मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, हम परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। 40 साल तो सेवा कर चुके, 40 साल सेवा करने के बाद यहोशू को मिला क्या? 40 साल तो मूसा की सेवा की उन्होंने, क्या मिला उनको मूसा के पास से? क्या मूसा उनको खाना देते थे? क्या मूसा उनको मीट खिलाते थे? क्या उनको अच्छे से कपड़े देते थे? कुछ भी तो यहोशू को नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी यहोशू इतनी सेवा करने के बाद ये बोल रहे कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, क्योंकि उसको एक सम्मान मिला। सम्मान क्या मिला कि परमेश्वर ने मूसा को चुना था कि मूसा तू इनको उस पार लेकर जाएगा। लेकिन सही में कौन लेकर गया? यहोशू लेकर गया। लेकिन मूसा से एक गलती हो गई और परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया और परमेश्वर ने बोला अभी मूसा नहीं लेकर जाएगा, अभी यहोशू लेकर जाएगा। तो यहोशू को परमेश्वर ने भेज दिया। आज अगर कोई बोले कि इजराइल लोगों को उस पार कौन लेकर गया, तो हम बोलेंगे यहोशू लेकर गए। निकाला किसने? तो बोले वो मूसा ने निकाला। लेकिन आखिर तक पहुंचाया किसने? तो बोले यहोशू ने। मतलब कैसी बात हो गई, किसी ने किसी को सुसमाचार दिया, उसको पापों में से तो निकाल लेकर आए, लेकिन स्वर्ग तक नहीं पहुंचा पाए, स्वर्ग तक किसी और ने पहुंचाया। तो स्वर्ग में जाकर क्या हुआ? जो स्वर्ग में पहुंचा वो क्या बोलेगा, मुझे स्वर्ग में किसने पहुंचाया? तो बोलेगा इसने मुझे पहुंचाया। जिसने निकाला उसका नाम नहीं आएगा। अभी मूसा ने चाहे निकाला, लेकिन देश में किसने पहुंचाया? तो यहोशू का नाम बड़ा हो गया, मूसा के ऊपर उसका नाम हो गया। लेकिन ये वो बड़ा पद उसको मिला कब? बड़ा पद उसको तब मिला जब उसने 40 साल तक मूसा की सेवा की। मूसा के आगे निकलने का कभी उसने प्रयत्न नहीं किया। अब परमेश्वर एलिया को बोलते हैं कि एलिया तेरी जगह पर तू एलीसा को चुन ले, और एलीसा जो वो तेरी जगह पर भविष्यवक्ता बनेगा, तेरी जगह पर नबी बनेगा। अभी एलिया ने तो ये काम कर दिया, उसका मस्सा कर दिया, एलीसा का मस्सा कर दिया। और एलीसा के पास तब जमीन जायदाद थी, वो 24 बैल लेकर वो खेती कर रहे थे। लेकिन जब एलिया वहां पर गए तो पढ़ो तो पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 20वां पद। ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। हाँ, एलीसा ऐसा बोल रहे कि एलिया तो कुछ यहाँ पर ठहर, मुझे इतनी इजाजत दे, मैं मेरे माता पिता के पास जाता हूँ और उनको आखिरी बार सलाम कर कर आता हूँ और मैं फिर तेरे पीछे चलने वाला हूँ। फिर क्या लिखा है आगे? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
हाँ, क्या लिखा है कि एलिया की सेवा करता रहा। अभी देखो परमेश्वर ने क्या बोला था कि एलिया की जगह पर एलीशा। तो एलीशा ये बोल सकते हैं ना कि एलिया जब तेरा आखिरी दिन हो, जब तुझे परमेश्वर ऊपर उठा ले, उस दिन मुझे बुला लेना, मैं तेरी जगह पर जो नबी का काम है वो मैं करने लग जाऊंगा। जब तक तू है तब तक तो मुझे काम करना ही नहीं है तेरा, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया की जगह पर एलीशा को चुना है। तो जब तक तू है तब तक तो मुझे कोई काम नहीं करना है। तो फिर अभी मुझे खेती करने दे, अभी मेरे माता पिता के साथ मुझे रहने दे, और जब तेरा जाने का दिन हो जाएगा तब मुझे याद कर लेना, मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा और तेरी जगह पर मैं भविष्यवक्ता मैं बन जाऊंगा। तो ऐसा एलीशा ने नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा एलीशा ने नहीं किया, लेकिन एलीशा ने क्या किया, तो बोले कि उसकी सेवा टहल करने लगा, वो एलिया की सेवा करने लगे। इतना बड़ा इंसान कि जो 24 बैल के साथ जो खेती कर रहा है, जिसके बाप दादा के पास जमीन जायदाद है, ऐसा इंसान किसकी सेवा कर रहा है? एलिया की। अभी देखो एलिया कौन था। तो जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने एलिया को क्या बोला, तो करिंथ में चला जा और वहाँ का जो नाला है वहाँ पर पूछा, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना देंगे। अभी देखो कौवा जो है वो मुंह में रोटी लेकर आएगा, कौवा जो है अपनी चोंच में वो मीटे लेकर आएगा, वहां से निकाल कर एलिया खाएगा। अभी समझो कि उसकी कोई सेवा कर रहा है, उसको कहाँ से खाना देगा? उसको खुद को कौवे दे रहे, तो कौन सा अपने जेब से निकाल कर एलिशा को देने वाला है? इसके खुद के पास कुछ नहीं, एलिया के पास। तो एलिशा को दे तो क्या दे, लेकिन फिर भी एलिशा क्या बोलते, मैं तेरे पास रहूंगा और मैं तेरी सेवा करूंगा। और एलिशा उसकी सेवा करते रहे। सेवा करते करते जब एलिया का ऊपर जाने का दिन आया, तो वो सारी बातें हमने पढ़ी कि जब एलिया को ऊपर जाना था, वो एलिशा को बोलते, एलिशा तो यहीं पर रुक जा, मैं आगे चलता हूँ। 3 बार रुकने का प्रयत्न किया, तीनों बार एलिशा ने मना कर दिया, मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। आखिर में क्या हुआ, वो लोग यरदन के पार चले गए, और जब यरदन के पार जा रहे थे तो क्या हुआ, यरदन के पार जब जा रहे थे तो एलिया ने बोला एलिशा को, एलिशा बोल तुझे मेरे पास से क्या चाहिए? अभी देख लो, एक ऐसा इंसान बोल रहा है जिसको खुद कौवे आकर खाना देता है। अभी वो एलिशा को ऐसा बोले कि तू मेरे पास मांग, तुझे क्या चाहिए? तो एलिशा उसके पास क्या मांगे? एलिशा खुद सब कुछ छोड़ कर आए, वो एलिया से मांगे तो भी क्या मांगे? अगर वो बोले कि यार एक काम करो, मुझे 1 किलो सोना दे दो, कहाँ से लाने वाला है? अगर वो बोले 2 किलो चांदी दे दे, कहाँ से लाने वाला है? अगर वो बोले कि मुझे कुछ कपड़े दे दे, मुझे एक घर दे दे, तो ये सारी चीजें तो एलिया के पास नहीं है, तो वो एलिशा को दे कैसे? और एलिया पूछ भी कैसे सकते हैं कि एलिशा तुझे क्या चाहिए? वो पूछ कैसे, जबकि उसके पास खुद के पास कुछ नहीं। लेकिन देखो, जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं, जब परमेश्वर किसी को अपने पीछे बुलाते, तो वो जो इंसान होता है ना, वो सांसारिक नहीं रहता, वो शारीरिक नहीं रहता, वो कैसा बन जाता है? वो आत्मिक बन जाता है। जब परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर आता है तो वो इंसान शारीरिक नहीं रहता, वो आत्मिक बन जाता है। और अभी हम पढ़ते हैं रोमिया उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤु ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ नहीं है सो वो मसीह दा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि आप शारीरिक नहीं हो लेकिन आत्मिक हो। लेकिन कब? जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता हो, मतलब जब पवित्र आत्मा तुम में बसता हो, तब तुम कैसे हो? आत्मिक हो, शारीरिक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो। तो क्या लिखा है बाइबल? जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है तब तुम कैसे हो? शारीरिक नहीं, आत्मिक। मतलब जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आता है तो वो इंसान शारीरिक रहता ही नहीं है, उसकी शरीर की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती, पहनने की, घूमने की, खाने की, पीने की सारी इच्छा उसकी मर जाती।
हाँ, फिर उसको ये सब चीजें चाहिए, लेकिन जो मिले चलो ठीक है, जो मिले चलो ठीक है। फिर वो शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो आत्मा की इच्छा के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के चलाए वो चलता है। तो जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आ जाता है तो वो शारीरिक इंसान नहीं रहता। अभी यहोशू के अंदर जब परमेश्वर की आत्मा आती है तो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए। एक जवान लड़का है, लेकिन सारी उम्र किसमें बिता दी? मूसा की सेवा करने में। जब एलीशा, तो एलीशा के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो उसने भी सारी जिंदगी जो कहाँ पर बिता दी? परमेश्वर की सेवा में और एलिया की सेवा में। उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, शरीर की कोई बात नजर नहीं आ रहा है, अपनी जमीन जायदाद नजर नहीं, अपने बेल नजर नहीं आ रहे, माता पिता नहीं दिखा देते, बस आत्मा की बात है। तो जब पवित्र आत्मा आता है तो ये सबसे बड़ा फर्क जो है वो इंसान के जीवन में आता है। आजकल तो जो परमेश्वर के दास लोग हैं उन्हीं में ये बात नहीं नजर आती, उन्हीं में जो आत्मा वाली बात नजर है, उन्हीं के अंदर शरीर की बात होती है, और शारीरिक होने के कारण वो लोग शिक्षा भी शारीरिक देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तब वो हमें शारीरिक नहीं रहने देते, वो हमें आत्मिक बना देते हैं। अभी एलीशा जो है वो एलिया के पीछे चल पड़े। अब एलिया बोल रहे, बोल तुझे क्या चाहिए? एलिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एलिया को मालूम है कि वो खुद शारीरिक नहीं है, उनको ये भी मालूम है कि एलीशा भी शारीरिक नहीं। शरीर की कोई बातें तो ये भी नहीं मांगने वाला, शरीर की कोई बात मैं भी इसको नहीं दे सकता। तो ये जो भी मांगेगा आत्मा की बात मांगेगा, और आत्मा की बात मांगेगा तो मैं तो उसको दे सकता हूँ। लेकिन जब उसने बोला कि बोल एलीशा तुझे क्या चाहिए, तो एलीशा ने क्या बोला मालूम? तेरे पास जो आत्मा है, तेरे पास जो शक्ति, उससे डबल। उसको डबल दे दे। बोले अभी चलो एलिया वो दे सकते जो है उनके पास, लेकिन उससे डबल वो भी कैसे लाए? वो भी कहाँ से लाए? तो एलिया बोला तूने जो चीज मांगी वो तो बहुत भारी है, मैं नहीं दे सकता तुझे, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे ऊपर जाते हो, अगर तूने देख लिया मुझे, तो बोले तुझे वो मिल जाएगा। अभी ऊपर जाते हो देख लिया मतलब अभी जब दोनों साथ में हैं तो ऊपर जाते तो एलीशा देखने ही वाला है, लेकिन एलीशा को नहीं मालूम होने वाला क्या है, जो एलिया को मालूम है कि किस तरह से वो ऊपर जाने वाला है। क्योंकि आगे के बनाए हुए घोड़े, उसके रथ वो आने वाले थे, और ये समझो कि किसी इंसान के नहीं है, किसी इस धरती के राजा के घोड़े नहीं है, लेकिन ये तो राजाओं के राजा के घोड़े हैं, प्रभु के घोड़े। वो घोड़े आम घोड़े नहीं होंगे, आम घोड़े से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। वो आम राजा का जो रथ आता है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा रथ होगा। अभी वो सब आग का बनाया हुआ। अभी ये दोनों साथ में चल रहे, और बाइबल में लिखा है दोनों के बीच में से रथ निकल गया और एलिया को ऊपर खींच लिया, एलिया को ऊपर बिठा ले। अभी इतनी सारी आग अगर एलीशा के पास में से गुजरेगी, उसको छूकर निकलेगी, तो एलीशा की हालत क्या होगी? वो तो मर जाएगा, वो तो वहीं पर झुलस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा वो तो एलिया बोलते अगर तुम मुझे जाते हो देख लिया, अगर तूने मुझे जाते हो देख लिया तो बोले ये काम तेरा हो जाएगा। तो एलीशा को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जीवित ही रहे, उनको आग कुछ भी नहीं कर पाई। जब जो नबूकदनेस्सर राजा था उसने बड़ी भट्टी बनाई थी और उसने एक मूर्ति बनाई थी, और मूर्ति बनाकर बोला था कि जो कोई इसकी पूजा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तब 3 लोग थे जिन लोगों ने उनकी पूजा नहीं की थी, तो उनको बोला कि आपको एक मौका और दिया जाता है, अगर आप मानते हो तो ठीक है, वरना आपको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो उन 3 लोगों ने पहले से ही उत्तर दे दिया, बोले राजा आप कुछ भी कर लो, हम आपकी बनाई मूर्ति की पूजा नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो हमको बचाएंगे, लेकिन अगर वो बचाना ना भी चाहे तो ना सही, लेकिन हम तो आपकी मूर्ति की पूजा नहीं करने वाले। तो ये सुनकर राजा का क्रोध जो भड़क उठा, तो राजा ने बोला कि भट्टी को और वो 7 गुना बोल दे, उसको गर्म करो। अब इतना गर्म कर दिया, फिर बोलते तीनों को उठाकर डाल दो अंदर, तो तीनों को उठाकर डाल दिया गया। जब उनको उठाकर अंदर डाला तो जो लोग डालने वाले थे वो बाहर ही मर गए, लेकिन ये जो 3 लोगों को अंदर डाला तो राजा ने देखा तो उनको 4 नजर आने लगे। चौथा यीशु मसीह थे वहां पर, और फिर देखा तो वो सभी लोग तो वहां पर आसानी से घूम रहे, वहां पर उनको कुछ भी नहीं हो रहा है।
जब कुछ नहीं हो रहा है तो ये राजा ने उनको बोला कि आप बाहर आ जाओ। जब वो लोग बाहर आए तो देखा तो उनके कपड़ों में से जो आग की बू आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही थी, बू तक नहीं थी उसके अंदर। तो परमेश्वर ने उनको उस आग से बचा लिया। यहाँ पर एलीशा जो थे वो भी उस आग से बच गए। उसके बाद क्या हुआ कि एलिया जो थे वो तो ऊपर चले गए। लेकिन ये जो नजारा इसने देखा ये एलीशा ने, तो एलीशा के मुंह से एक आवाज निकली। अभी उस आवाज को बहुत ध्यान से सुनना और पढ़ो तो दूसरा राजा दूसरा अध्याय। तुम पढ़ रहे थे दूसरा राजा दूसरा अध्याय कहाँ पर ढूंढ रहे हो? कितना ही 12वां पद। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ। अभी इसके अंदर से वो आवाज निकली। जैसे उसने ये रथ देखे, घोड़े देखे, उसके अंदर से आवाज निकली कि इजराइल के परमेश्वर इजराइल के रात इस्राएल ਦੇ ਰੱਥ और इजराइल के ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ। उसके सारथी, मतलब उसके ऊपर सवार होने वाले लोग। मतलब उसके अंदर से आवाज निकली, हे मेरे पिता। सही में जो आवाज निकली, जब हम अचानक से देख लेते ना किसी को और ऐसी भयानक सी चीज दिखते तो हमारे अंदर से जो आवाज निकलती कि हे मेरे पिता, ऐसे नहीं, हाय बाप क्या हो गया है, इतने बड़े रथ, इतने बड़े घोड़े, उसके सारथी इतने बड़े। ये आवाज एलीशा के मुंह के अंदर से अचानक से निकली। बोले इजराइल के रथ ऐसे होते, इजराइल के घोड़े ऐसे होते, उसके सवार ऐसे होते, उसके सारथी ऐसे होते। उसके अंदर से आवाज निकली। अभी एक गलाती में ऐसा लिखा है, गलातिया उसका 3रा अध्याय और उसका 29वां पद। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। अगर तुम मसीह के हो, मसीह के मतलब मसीह को मानने वाले लोग, अगर आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, मसीह को मानते हो, तो बोलते आप कौन हो? अब्राहम की संतान। अभी समझो कि क्या आप मसीह को मानते हो कि नहीं? सारे लोग, सभी लोग मानते हैं मसीह को, सभी लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर हम मसीह के हैं तो हम किसके अंश हैं? अब्राहम हम अब्राहम के अंश हैं। अब्राहम की सबसे पहले अंश कौन सी थी? इसहाक। इसहाक से कौन हुआ? याकूब हुआ। याकूब का नाम परमेश्वर ने क्या रखा था? इजराइल। याकूब का नाम परमेश्वर ने इजराइल रखा था। इजराइल का मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? नहीं, इजराइल का मतलब नहीं, इजराइल का मतलब नहीं मालूम। जब नहीं, याकूब जो थे उन्होंने पूरी रात लड़ाई लड़ी परमेश्वर के साथ। परमेश्वर वहां आकर खड़े थे रात में, और रात में युद्ध हुआ। तो रात में युद्ध हुआ तो पूरी रात याकूब लड़ते रहे, लेकिन उनको विजय नहीं मिला। वो जीते तो नहीं, वो हारे भी नहीं। क्योंकि कुश्ती में ऐसा होता है कि जो दूसरे को गिरा दे उल्टा, तो मतलब वो हार गए। तो ना तो याकूब ने उनको गिराया, ना उन्होंने याकूब को गिराया। तो अभी तक युद्ध जो था वो पूरा ही नहीं हुआ था। लेकिन सुबह हो रही थी तो परमेश्वर ने देखा सुबह हो रही, अब मुझे जाना चाहिए। तो परमेश्वर जाने लगे। तो जब परमेश्वर जाने लगे तो याकूब ने पकड़ लिया उनको, बोले मैं जाने नहीं दूंगा। तो परमेश्वर ने अपनी उंगली उसकी जान के ऊपर अड़ा दी। जैसे उसने छुआ तो उसको मोच आ गई और वो चल नहीं पा रहा ठीक से। तो उसको लगा मैं पूरी रात इसके साथ लड़ता रहा, जिसे सुबह सिर्फ एक उंगली मुझे लगाई। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी रात परमेश्वर ने तो याकूब को कुछ भी नहीं किया था, वो बस सिर्फ खड़े थे सीधे।
अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा है, और एक बार क्या हुआ, एक इंसान ने क्या किया, उसने जूते निकाले थे अपने, चप्पल निकाले थे, वहां पर रखे हुए थे। दूसरे ने क्या किया, धीरे से जाकर उसके अंदर खिल लगा दी, पूरे जमीन के साथ गाड़ दिया। अभी जब वो उठकर टहल रहे हैं, वो तो आसानी से चलने गया, अभी वो तो खिल लगाई, वो अंदर पूरा जम चुका है वो, तो जितनी आसानी से वो चला, वो आगे निकल गया, वो वहीं पर रह गए, लेकिन उससे क्या लगा, ठोकर लगी, वो गिर गया। जब हमें ऐसा लगता है कि मैं तो इसको आसानी से गिरा सकता हूँ, हमने उसको जोर लगाकर ऐसे ही गिरा दिया, लेकिन वो तो हमसे बलवान निकला, हमारे हाथ फिसल गया, तो हम क्या करेंगे, हम गिर जाएंगे। तो याकूब ने एक बार नहीं, पूरी रात बहुत बार प्रयत्न किया, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही खड़े रहे, बस वो को गिराने का प्रयत्न करता रहा, वो खुद गिरता रहा, परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं किया। लेकिन सुबह जब उंगली लगा दी, तो उसको पता चला कि मेरे सामने जो था वो कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो उसने बोला, फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले परमेश्वर मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीष दो। तो परमेश्वर ने उसको बोला, तेरा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम याकूब है। बोला आज से तेरा नाम इस्राएल। तो फिर उसने जाने दिया। अभी देखो उसने क्या मांगी, आशीष। परमेश्वर ने आशीष क्या दी, नाम बदल दिया। अब यूपी में योगी ने भी कई जगह के नाम बदल दिए, नरेंद्र मोदी ने भी कई जगह के नाम बदल दिए। नाम बदलने से होता क्या है? और याकूब ने नाम में ऐसा क्या देखा, तो उसने परमेश्वर को जाने दिया। इज़राइल का मतलब यह होता है कि जिसके लिए परमेश्वर युद्ध करते हैं, उसका मतलब यह है, जिसके लिए परमेश्वर युद्ध करते हैं उसको बोलते हैं इज़राइल। तो परमेश्वर ने उसको एक शब्द में यह बता दिया कि आज तक तू लड़ता है। उसने देखो अपनी पत्नी के लिए 14 साल, पत्नी को पाने के 14 साल उसने मजदूरी की, फिर भेड़ बकरी के लिए 6 साल और मजदूरी की, फिर अपनी आशीष पाने के लिए भी अपने भाई के साथ उसने लड़ाई की, खाना बेचा, आशीष ली, फिर अपने पिता के पास से भी आशीष पाने के लिए जो उसका हक बनता था उसके लिए भी उसको कुछ करना पड़ा। तो आज तक वो लड़ता आया था। तो परमेश्वर बोलते अब तू मत लड़ना, अब तेरी जगह पर मैं लड़ाई लड़ूंगा। जब हम मसीह के, तो हम किसके अंश है? अब्राहम की। अब्राहम के अंश कौन है? इज़राइल। तो जब हम मसीह के हैं तो हम इज़राइल के हुए। हालेलुया। जब हम इज़राइल के हुए तो इज़राइल का मतलब क्या? जिसके लिए परमेश्वर युद्ध करते हैं। जब हम इज़राइल है तो हमारे लिए कौन युद्ध करता है? हमारे लिए परमेश्वर युद्ध करते हैं। अब हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं। तो फिर कुछ में क्या लिखा है? कुछ 14 का 14। हाँ, तुम शांत रहो और परमेश्वर, हाँ वो ही हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जब हम इज़राइल के तो हमारे लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारे परमेश्वर। अभी देखो एलीशा, उसने जब परमेश्वर के सैन्य को उनकी सेना को देखा, वो भी पूरी सेना को नहीं, सिर्फ एक रथ को देखा है, उनके सारथी को देखा, उनके घोड़े को देखा, उसके अंदर से क्या आवाज निकली? बाप रे बाप, इज़राइल के रथ, इज़राइल के सारथी। अभी तो एक रथ देखा, एक दो सारथी को देखा और उसके मुंह से आवाज निकल गई। अभी समझ लो कि पूरी सेना को देखे तो। और हमारे परमेश्वर क्या बोलते हैं? इज़राइल की सेना का परमेश्वर। हमारे परमेश्वर कैसे परमेश्वर? इज़राइल की सेना के परमेश्वर। जब आसा राजा लड़ाई करने के लिए चले गए, उसके पास 5,80,000 थे। सामने जो लोग युद्ध करने के लिए आए थे वो लोग 10 लाख लोग थे। ये 5,80,000 से लड़ने के लिए गया, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर क्या करूं, मुझे डर लग रहा है, सामने 10 लाख लोग हैं। परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, तू जा लड़ने के लिए, मैं तेरे साथ हूँ। और बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय, उसको ध्यान से पढ़ना, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर और परमेश्वर की सेना उन्होंने लड़ाई की, और उन्होंने लड़ाई की, और ये 5,80,000 थे, उसमें से एक भी नहीं मारा गया। और सामने जो 10 लाख थे उनमें से एक भी नहीं बचा। अगर 5,80,000 लड़ते तो उनमें से कोई तो मरता, लेकिन परमेश्वर लड़े तो सामने से इज़राइल की सेना में से कोई नहीं मर गया, लेकिन सामने वाले का एक भी नहीं बचा। तो जब परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, तो इज़राइल का मतलब जिसके लिए परमेश्वर युद्ध करते, तो परमेश्वर की सेना का जो रथ है, एक रथ देखकर एलीशा ऐसा बोलते हैं कि बाप रे बाप, परमेश्वर का, इज़राइल का
रथ और इजराइल का सारथी। वो देखकर अभी समझो कि अगर हम यीशु मसीह के हैं तो हम इजराइल के, अगर हम इजराइल के तो इजराइल के रथ कैसे होने चाहिए, इजराइल के सारथी कैसे होने चाहिए, इजराइल के लोग कैसे होने चाहिए। तो परमेश्वर हर बार क्या बोलते, लड़ने के लिए जाओ, निकलो, लेकिन बोले आप शांत रहना, लड़ूंगा मैं। लेकिन निकलो तो सही। गोलियत के सामने किसने युद्ध लड़ा, दाऊद ने। लेकिन देखने के लिए जाओ तो क्या दाऊद लड़ सकता था क्या? दाऊद ने एक पत्थर मारा, वो पत्थर यहाँ से उसके अंदर घुस गया। अभी क्या दाऊद में इतनी ताकत हो सकती छोटे से बच्चे में कि पत्थर मारे और पत्थर ये हड्डी तोड़कर अंदर घुस जाए? इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर मौजूद थे। जैसे ही दाऊद ने पत्थर को छोड़ा गोफन से, वो पत्थर परमेश्वर के हाथ में आ गया। वो किसी को नहीं दिखाई देता, परमेश्वर नहीं दिखा दे, परमेश्वर का हाथ नहीं दिखा दिया, वो पत्थर किसी के हाथ में वो नहीं दिखाई। उसके बाद परमेश्वर ने मारा, और परमेश्वर ने मारा इसलिए एक गोली के समान वो गोलियत के यहाँ से अंदर घुस गया। वो दाऊद से नहीं हुआ था, वो परमेश्वर से हुआ था, परमेश्वर ने मार दिया था। तो जब हम इजराइल के हैं, जब हम खुद इजराइल, तो हमारे लिए कौन युद्ध करते? हमारे परमेश्वर युद्ध करते। लेकिन इजराइल के होने का मतलब क्या है? इजराइल का मतलब ये है कि जिसके लिए परमेश्वर युद्ध करते। तो इजराइल के लोग कैसे होने चाहिए? इजराइल के लोग बिंदास होने चाहिए। जब यहोशू मूसा के पीछे चलते हैं तो कैसे चलते हैं? वो देखते नहीं कि मेरा क्या होगा, मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, मेरा नाम होगा या नहीं होगा, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस वो किसकी सेवा करते रहे? वो मूसा की सेवा करते रहे। मूसा की सेवा करते करते उनको वो आशीष मिली कि वो पूरे इजराइल को लेकर उस पार चले गए। एलिशा जब एलिया की सेवा करते रहे तो उनको वो आशीष मिली कि एलिया का दुगुना हिस्सा, दुगुना अभिषेक, दुगुना मस्सा, दुगुना सामर्थ उनको मिल गया। हमें भी क्या करना है? हमारा जो पद है, परमेश्वर ने हमको अभी जहां पर रखा है उसी जगह पर, लेकिन ईमानदारी से परमेश्वर का काम करो। आप चाहे जो भी हो, जहां पर भी हो, अगर आप 2 रुपये कमा रहे हो तो वहां पर परमेश्वर के लिए ईमानदार बनो। अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो आप वहां पर परमेश्वर के लिए ईमानदार बनो। आपके पास छोटा सा कमरा है तो उसमें ईमानदार बनो। आपके पास बड़ी सी कोठी है तो उसमें ईमानदार बनो। परमेश्वर ने आज आपको जहां पर रखा है वहां ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलते रहो, परमेश्वर की सेवा में बने रहो, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते रहो, परमेश्वर जितना बोलते उतना करते रहो। तो आगे चलकर परमेश्वर आपके जीवन में कौन सा बड़ा काम करे वो हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम सोचेंगे परमेश्वर कब हमें बड़ा करेंगे, कब हमें बड़ा करेंगे, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, परमेश्वर ये दे दो, वो दे दो, तब हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा और हम मांगते रह जाएंगे और हम ऐसा सोचेंगे परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन परमेश्वर ने आज जो दिया है, जो रखा है, बस उसमें आगे बढ़ते रहो, उसी में संतुष्ट रहो और उसी में संतुष्टि के साथ आगे बढ़ते हो, परमेश्वर की सेवा करते हो। जिस तरह से एलिया की सेवा में एलिशा बने रहे, मूसा की सेवा में यहोशू बने रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कब मूसा मर जाए, कब एलिया मर जाए और उसकी जगह मुझे मिल जाए। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको वो जगह दी, उनसे भी आगे बढ़ाया। लेकिन कब? ये लगातार उनकी सेवा में बने रहे। जहां पर परमेश्वर ने आज हमको रखा है, बस उस सेवा में बने रहो, क्योंकि इजराइल के जो रथ है, इजराइल के जो सवार, परमेश्वर की जो सेना, वो इतनी बड़ी कि वो हमें कहां से कहां पहुंचा देगी। लेकिन हमें क्या करना है? आज हम जहां पर है वहां ईमानदारी से परमेश्वर के साथ बने रहें, ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करते रहें, तो परमेश्वर हमको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो, तो परमेश्वर बोले पहले तू जहाँ है वहां तो रहे, वो तो काम पूरा कर। हम क्या करते हैं? हमको शर्म आती है मूसा की सेवा करने में, हमें शर्म आती है एलिया की सेवा करने में, पर उनके पास कुछ नहीं, वो हमें क्या देंगे? लेकिन कोई बात नहीं, आत्मा में तो हमसे आगे हैं। जो भी आत्मा में हमसे आगे, उनकी सेवा में बने रहो, उनके साथ जुड़े रहो, उनके साथ आगे बढ़ते रहो, उनकी सहायता करो। तो देखो परमेश्वर हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। हम अभी जहाँ पर हैं वहाँ पर रहकर परमेश्वर की सेवा करते रहे तो परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सेना जो है वो बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जहाँ पर है वहाँ पर बने रहें, वहाँ पर ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करें। तो जिस तरह से यहोशू को मूसा से भी आगे ले गए और एलिशा को एलिया से भी आगे निकाल दिया, इस तरह से परमेश्वर हमें भी लोगों से आगे निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले आज जहाँ पर है वहाँ ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलते रहें।
क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा आती है हम शारीरिक नहीं रहते, हम आत्मिक रहते हैं। जिस तरह से यहोशू आत्मिक बना रहा, जिस तरह से एलीशा आत्मिक बना रहा, हमें भी आत्मिक बने रहना है। संसार की खोज में नहीं रहना है, लेकिन आत्मा की खोज में बने रहना है। आत्मिक वरदानों की खोज में बने रहना है, पवित्र आत्मा के वरदान और उनके फलों की खोज में बने रहना है, उसमें आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर हमें पक्का एक दिन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें नहीं सोचना कि कब, परमेश्वर की मर्जी, लेकिन हमें परमेश्वर ने जो दिया है बस उसमें हम बने रहें। आओ हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। जो भी वचन आज आपने हमको सिखाए पिताजी, उसके अनुसार आपकी सेवाओं में बने रहने के लिए, जिस जगह पर आपने हमको ठहरा उस जगह पर बने रहने के लिए आप हमें बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो पिताजी, ताकि हम अच्छे से बने रहे पिताजी, सेवा में बढ़ते रहें। और आगे आने वाले दिनों में पिताजी आप हमको जहाँ पर बिठाना चाहते हैं, जहाँ पर बढ़ाना चाहते हो, वहां पर आप हमको बढ़ा सको पिताजी। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आप हम पर दया बरसाओ, अपनी कृपा बरसाओ। यहाँ इकट्ठे सभी को आज के वचन की आशीष से भर दो। शत्रु शैतान किसी के भी दिल से पिताजी वचन चोरी कर ना लेकर चला जाए, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। रात में सभी को अच्छे से नींद देना, सुबह आपका नाम लेते उठाना, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। आपके पवित्र लहू में सभी को छुपा कर रखो। थैंक यू माय जीसस। जो भी मेरे प्यारे पिता हमने मांगा है पिताजी वो आपने दिया है, इसे विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।